Mariam, why you were not there in the lectures and now I texted you during that time you entered in? The rest of the students get entered in right now. Mariam? Are you listening, Mariam? When I tell you that I will not keep you in the lectures, in that time you will enter inside. Right now, 4 students entered in. Out of these problems, only one problem which is slightly different from one to get it, and that is the last problem. Question number 22nd. The rest, all of you all should get all the problems. 18th, 19th, 20th, 21st, you should get it. Anybody has completed with the 18th one? Can you tell me for the 18th one? Anyone? So 5 meters per second. Meter per second square. Okay, Akash. How do you get it? सर हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ये पता है कि v स्क्वायर बाय r होता है एंड देन a नेट निकालना है हमको ऑलरेडी टेंजेंशियल दिया है तो v 30 स्क्वायर बाय 300 विल बी लाइक 3 तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा एंड देन 5 आ जाएगा अंडर रूट में होगा. Since 18th question, it seems that probably we had worked out such kind of question earlier, but वापस उसको recollect करना, that is also very important, students. ऐसे टाइप के क्वेश्चन करके again, yes, Pratham. Okay, fine, Pratham. So students, the formula what Akash gave us is absolutely correct, students. They are saying it is acceleration net. Students, whenever a body is performing circular motion, okay, it has two accelerations, students, tangential and centripetal. Students, अगर UCM होगा तो सिर्फ centripetal है, ये ध्यान में रखना. Non UCM है तो उसको tangential भी होगा और उसको acceleration centripetal भी होगा. उनका net acceleration इस तरफ जाएगा. और students, उसी का हम लोग ने एक we did the formula also for this. Direction of net acceleration also we found out. So net acceleration अगर मुझे चाहिए तो in vector form how do I write down? So triangle law, ये vector को यहाँ पे shift कर दो students, parallel to itself. तो देखो acceleration net will be equal to acceleration tangential plus acceleration centripetal. So how many accelerations are associated for a particle performing circular motion? In this case, I've taken in anti-clockwise. 2 acceleration. One is tangential, one is radial. We need to go for net acceleration. If I want to tell you to find out what is the net force, tangential force plus force centripetal. लेकिन मुझे चाहिए magnitude of net acceleration, students. तो students, magnitude of net acceleration क्या होगा? Under root square of acceleration tangential plus square of acceleration centripetal. Of course, we are using parallelogram law of vector addition. ये तो कहना ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 90 है. So what exactly formula you have come across? If you recollect in vectors, p square plus q square plus 2pq cos theta. What is theta between them? 90. So what is cos of 90? 0. इसलिए तुम्हारा सिर्फ स्क्वायर आएगा. Now when you read the question, students उन्होंने clearly बोला है that circular radius कितना दिया और speed कितना दिया. तो v square by r ये हो जाएगा. Tangential क्या है तुम्हारा? 4. लेकिन सबका स्क्वायर है students. And then you have to solve it. Hope you have got it. The answer for this will be getting it as option D, 5.
Come on, the rest of them, students. Yes, anybody can give an answer for the 19th one now. Sir, option A, maximum at A. Very good, Neha. And मुझे बता सकते हो कैसे maximum at A? What's the reason for it? Sir, because it has the smallest radius and the mass for all the situations will be same. Very good. And are they going with same velocity? Yes, mv square Sir, by when r. your speed. Yeah, same speeds. All of them are going with same speed. Absolutely correct, students. अभी यहाँ पे 3 अलग position दी है स्टूडेंट्स, और ये कंसेप्ट में बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान में रखना, सेम एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम recently. ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, I'm just trying to tell you, recently also I did it with 12th standard students who are appearing for the board exams right now. उनकी मार्च में बोर्ड एग्जाम्स है, उनकी मेंस की एग्जाम्स भी है, एडवांस दे रहे हैं, कोई नीट दे रहा है. Are you getting it right now? तो just 2 or 3 days ago exactly मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन वापस पूछा था उनको, यही क्वेश्चन पूछा था. They could give an answer but the other way around. जिसका रेडियस मिनिमम है उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उन्होंने मिनिमम बोल दिया, यानी उन्होंने शायद वैसे रिमेम्बर किया होगा. स्टूडेंट्स, मेमोराइज मत करो. अगर मेमोराइज करोगे, रट्टा मारोगे तो तुम भूल जाओ. तो थोड़ा सा कंसेप्चुअली भी ध्यान में रखो how to go about. Now when you look into the students, just try to look into the diagram again, students. Again, this is for the last time I'm drawing it, students. और यहाँ पे अलग अलग पोजीशन है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन तुम्हें सबके बारे में बता सकता है, क्योंकि बॉडी नीचे भी है ऊपर भी सर रखा हुआ आपका है. वॉइस थोड़ा ब्रेक हो. स्टूडेंट्स, इज माय वॉइस ब्रेकिंग? No, sir. ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज सर रिप्लाई. सॉरी सर, मस्ट बी माय इंटेंट. या I have a proper network में क्या. Okay. तो यहाँ पे if you see into it, students, the diagram I'm showing it over here, students. B का रेडियस C से कम है और A से ज्यादा है, और A का सबसे कम है, C सबसे ज्यादा है. अभी यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है पहले स्टूडेंट्स, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ रहा है? It's coming over here at point A, at point B, and at point C. Now when I speak about the object over here, or over here, or over here, students, this is the center I'll consider. ये इसका सेंटर होगा, ये इसका रेडियस होगा. तो सबसे रेडियस लॉन्गेस्ट ये वाला होगा स्टूडेंट्स, सबसे लॉन्गेस्ट रेडियस ये है. Point X, and point X. Let us say point X is the center of the circular path. Now, when I try to go for the free body diagram, students, for this, so what exactly I consider? At point A तुम्हारा क्या होगा students? mg नीचे की तरफ जा रहा है ना? और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? Passing from the center of gravity, normal reaction. तो Na होगा. Agreed? यहाँ पे तुम्हारा mg नीचे की तरफ जा रहा है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है. Agreed? यहाँ पे तुम्हारा mg नीचे की तरफ जा रहा है
और यहाँ पे जा रहा है तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट सी। Now, how is the motion of the body over here? It's going up. This is coming down, and again this is going up. तो पहले वाला का इक्वेशन क्या हो सकता है? Neha, can you tell me what is the equation for the first one since you answered? Neha, are you there? Neha, Yes, Neha, sir. Yes, sir. कहाँ हो तुम? Sir, कहाँ there. चले कहाँ चले गए थे? बोलो, इसका इक्वेशन बता सकते हो? Yes, sir. Sir, Na minus mg is equals to mv square by r. mv square by radius of a. तो Ra. नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? mg plus mv square by ra. ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। एग्रीड? Yes, sir. इक्वेशन क्या होगा? nb minus mg is equal to mv square by rb. हाँ, तो nb क्या हो जाएगा? mg plus mv square by rb. तो यहाँ पे nb माइनस mg, सो क्या होगा तुम्हारा? यहाँ पे mg विल बी ग्रेटर ना, इस mg ग्रेटर है ना, क्योंकि नीचे की तरफ आना ना, तो mg माइनस ना, तो ये तुम्हारा क्या होगा? mg माइनस ना, इज इट? नेहा, Sir, Yes, M sir. minus NB, is equals to. और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो mg इज ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, so mg minus nb is equal to mb square of r. So nb will be equal to what? mg minus mb square of rb. नेहा, यही बोलना Yes, चाहते sir. थे तुम? तुमने ये बोला कि उल्टा बोला था? Sir, उल्टा प्लस बोल दिया. उल्टा कैसे बोल सकते हो? ये दोनों इक्वेशन सेम थोड़ी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ की बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है। मैंने क्लियरली स्टूडेंट्स लिफ्ट का कंसेप्ट बोला, कितनी दफे बोलूं मैं? इसके इक्वेशंस Yes, को sir. you can't do mistakes like that when you've done laws of motion. You can't do mistakes like that when you've done problems based on to pulley. You've done problems based on to lift. And in the last lecture, I explained you questions onto this. You can't commit mistakes when concepts have been thrown across to you all by teachers for different problems. How could you do a mistake in that? Equation form करने में होना ही नहीं चाहिए ये। लिफ्ट के प्रॉब्लम में भी तुम लोग ने ऐसे ही कंसेप्ट यूज किया है, पुली के अंदर भी किया है। एक मास सस्पेंड है तो फिक्स पुली लेता हूँ, मास सस्पेंड करता हूँ और पुली एक तरफ से ऊपर जा रहा है तो टेंशन माइनस mg लेते हो, इज इक्वल टू एम है। कहाँ पे जो नीचे गिरता है वो mg माइनस टी इज इक्वल टू एम है। जब इतना सब कुछ हो गया है और यहाँ पे आते हो तो कुछ अलग सोच रहे हो। हाउ कैन यू डू लाइक दैट? स्टूडेंट्स, फिजिक्स इज नॉट डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंसेप्ट्स, इट्स द सेम। अभी यहाँ पे क्या होगा? ये डायग्राम और ये डायग्राम एक्जैक्टली सेम है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे nc माइनस दिस, तो यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट सी will be equal to mg mv square by r upon radius of c. Yeah, now tell me why the normal reaction force at A is maximum. तो तुमने क्या बोला था स्टूडेंट्स? What she said it, weight in all the cases is the same. Yes, sir. Agreed. ये पॉजिटिव साइन, यानी मेरा आंसर इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ये तो Yes, नेगेटिव sir. सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, इसमें से तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना कुछ, mg में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो nb तो लेस ही होगा कंपैरेटिवली। Yes, sir. आई गेटिंग इट? ये mg प्लस आ रहा है तो मेरा आंसर या तो na में या nc में ही होगा, और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका मतलब मिनिमम ये होगा। आया ना? हाँ sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, रेडियस किसका छोटा है? सर रेडियस आर का छोटा है। अगर ये रेडियस छोटा है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ गया तो mg के साथ में ऐड कर दिया तो टोटल वैल्यू बढ़ जाएगी।
Yes, sir. ये आरसी का क्या है, आरसी का रेडियस ज्यादा है स्टूडेंट्स, रेडियस ज्यादा होने की वजह से ये फ्रैक्शन ओवरऑल रिड्यूस हो जाएगा। एमजी के साथ में ऐड करोगे फिर भी इसकी वैल्यू इन कंपैरिजन टू दिस विल बी लेस बट मोर देन दिस। Yes, sir. So Na will be maximum, NB will be minimum। यहाँ पे तुम एमसीक्यू कर रहे हो, सिर्फ मैक्सिमम पूछा स्टूडेंट्स, चाहता तो मैं दोनों पूछता, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो तुम्हारा आंसर मैक्सिमम के लिए Na आएगा, मिनिमम NB के लिए। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज राइट डाउन बोथ द आंसर्स so that you will understand. Next time ऐसे क्वेश्चंस आए तो गलती मत करना। PO, see Neha to said it, sorry for that also. She texted also, sorry sir, I won't do mistakes. लेकिन तुम नहीं। PO, are you there PO? Yes, sir. PO, mama is listening. No, sir. Not this time. Want her to listen. Anahita, are you getting it, Anahita? Yes, sir. Okay, Akash. Yes, sir. Okay, fine. Please, the rest of the students also try it out, okay? Daksh, Swayam, Shubh, Rishika, Pratham, Arif. Okay, students. So please go ahead to the next one. इसको erase कर दो students. Can I erase this? Students erase कर दो. Yes, sir. Yes, sir. When is your major test, students? Students, major test will be 31st. Sir, का. end of this month. end of this month. Physics में क्या portion है? NLM, WPN, circular हाँ क्या? NLM WPE. and circular motion. and circular motion है ना? Yes, sir. Yes, sir. कैसा लग रहा है? सर्कुलर मोशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर क्या करें, यही प्रॉब्लम में अटक गए थे। नहीं आ गया था ना? आ रहा है sir. Okay. चलो सॉल्व फास्ट। Give me the answer for the 20th one, students. Izar, you are not answering nowadays, huh, Izar? सर आज ही नहीं कर रहा हूँ, हाँ? आज ही नहीं कर पा रहा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? सर, थोड़ा सा हो रहा है, अनईजी। अभी भी नींद में है कि क्या कर रहा है, कि रिवाइज नहीं किया? स्टूडेंट्स ये चैप्टर को यहीं खत्म करो ना, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? मेरे साथ में बैठ के अगर आज तुम थोड़ा सा कल बैठ के अगर थोड़ा सा फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते, थोड़ा सा डेरिवेशंस गो थ्रू कर लेते, और आज हमारे साथ में प्रॉब्लम्स हो ही रहा है। अच्छा, इज़हार एज अ सोर थ्रोट। अच्छा इज़हार, तुम्हें यानी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मुझे ये बोलो। आज नहीं हो रहा इन द सेंस, यानी आई थॉट कि मे बी तुम्हें आ नहीं रहा है, इस प्रॉब्लम इज इज हैविंग अ सोर थ्रोट, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं सर। ओके फाइन। लेकिन स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज रिवाइज करो एंड ट्राई टू गेट रिड ऑफ द चैप्टर। तुम्हारा सर्कुलर मोशन स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, अगर एनएलएम है, वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन है, तो यू शुड फाइंड आउट वर्क पावर एनर्जी टू बी इजीएस्ट, then followed by circular motion and then followed by NLM. सर उल्टा होता है क्या? सर, NLM and circular motion is like थोड़ा easy as compared to work power energy. अच्छा वृद्धि, वृद्धि तू भी है, मैंने देखो देखा ही नहीं। वृद्धि तू तो आंसर देती ही नहीं है। वृद्धि कहाँ है तू? वेयर आर यू वृद्धि? वृद्धि वृद्धि वृद्धि। अच्छा वृद्धि,
रुधि तू आंसर दे, तू आंसर नहीं दे रही है. Okay, I try. And Ruti, I can't create or I can't do anything of that sort. Might be slightly थोड़ा सा हो जाएगा unofficial. I will. Sir, It's fine. I'll take the permission and then we'll work it out. Okay, don't worry about that. Okay. Which college are you from, Ruti? And which branch you are from? Mira Road, no? You are from no, sir, Borivali branch. Borivali branch. Have you come down over there at Borivali when I come for the sessions? Sir, I actually have changed my branch. Actually, मैं पहले बोरीवली में थी, but अभी सीपी घाटा में हूँ. Okay. Okay, students, can you give an answer for the 28th one? A particle of mass m is tied to a light string and rotated with the speed v along the circular path the radius r. If T is the tension in the string, mg is the gravitational force, then the actual force acting on the particle r. So what are the actual forces? Read it very clearly, students. और यहाँ पे students ये question is more on to English rather than physics. If your English is correct, you'll be able to get it. First of all, tell me, students, is the body moving in a vertical plane or horizontal plane? Students, Horizontal. are you getting it? कैसे पता चलता है? Its speed v along a circular path of radius r. If the tension in the string and mg is the gravity of the particle, then the actual force acting on the particle r. Students, T is the tension in mg are the actual forces. Okay, and rotates with a speed v along a circular path. A circular path can be vertical or can be horizontal. The tension in the string, are you getting it? And mg, mg is the gravitational force on the particle. Then the actual force acting on the particle r. Suppose if I happen to go for a horizontal plane, since stone यहाँ पे है, ये center है. Think as if the body is moving in a circular path. Since where exactly the direction of tension? So the direction of tension is in the string, which is directed from the stone towards the center. Students, पहले ये ध्यान रखो. Suppose अगर मैंने string लिया है और string को मैंने suspend करके रखा है, stone यहाँ पे, okay, और string को मैंने पकड़ के रखा है. Students, तो मुझे बताओ tension ऊपर की तरफ होगा, mg नीचे की तरफ होगा. लेकिन ये क्या है? The entire system is at rest. Agreed? Now, if in case if I try to revolve in a horizontal plane, तो यहाँ पे देखो students, horizontal plane में anti-clockwise direction में है, तो tension इस तरफ जाएगा, weight किस तरफ जाएगा, mg. And students, अगर ये पूरा revolve हो रहा है, तो weight remains constant throughout. So Yes, now sir. there are two forces already acting. But if you try to go for the options, along with mg and t, an additional force. Word additional, students, यानी add होना जरूरी है. अब यहाँ पे देखो, T is a tension which is directed from the stone towards the center, and this tension itself, students, this tension itself is a real force, और वो है तुम्हारा force centripetal, which is equal to mv square by r. Is mv square by r an additional force? क्या तुमने t के साथ में plus mv square by r लिखा है? No, sir. Equal to लिखा है. Equal to, है ना? Plus तो है नहीं, तो it can't be additional. तो तुम्हारा b भी नहीं होगा, c भी नहीं होगा, क्योंकि additional आएगा ही नहीं. Only mv square तो हो ही नहीं सकता, तो it will be t and mg. So for the answer for this will be what? Option A. क्या ये clear हुआ, students? Yes, sir. Yes, sir. अगर suppose मैं vertical motion के लिए ले लेता हूँ, तो क्या होता? Now this is horizontal motion, okay? Horizontal circular motion, और ये vertical VCM ले लेता हूँ, तो क्या होता है? ये center है तुम्हारा. Now suppose if I say the stone is somewhere over here, mg नीचे की तरफ जा रहा है. ध्यान से देखना students. तो ये देखो,
क्या होता, कंपोनेंट आता है ना स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes, sir. यानी ये mg है, ये mg है, mg का एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, दूसरा आ रहा है mg sin थीटा। क्या कहाँ पे भी ऑप्शंस में कंपोनेंट ऑफ वेट के साथ में पूछा है या mg के साथ में पूछा है ऑप्शंस में? MG. mg के साथ। स्टूडेंट्स कंपोनेंट आ ही नहीं रहा है, यानी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में पूछा ही नहीं है क्वेश्चन। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. yes sir। तभी जाके तुम हॉरिजॉन्टल प्लेन ले सकते हो। अगर सपोज मैंने कंपोनेंट के हिसाब से पूछा था तो क्या होता, तुम बोलते देन सर t इज ग्रेटर देन दिस, सो द आंसर है यहाँ पे क्या होता, t इज ग्रेटर देन mg cos theta. Are you getting it? So t is equal to mg cos theta plus mv square by r. Difference of this will be mv square by r. अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता तो कैन आई से this force should be subtracted from tension, t minus mv square by r. subtract होता, add नहीं होता। हाँ स्टूडेंट्स, कुछ याद आ रहा है? ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, भूल गए? Students forgot or what? Where is the Sir, thinking at? here mv square by r will be directed where? Inwards, that is the one. Students, कभी भी दो forces act होते हैं, देखा यही तो problem है, तुम लोग नहीं पढ़ाई करते हो यार, नहीं पढ़ाई करते हो। क्या है यार, this is something silly I'm trying to consider. एक सिंपल हिसाब है फोर्सेस के बारे में स्टूडेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो एक अंदर की तरफ लग रहा है और एक कंपोनेंट बाहर की तरफ जा रहा है। अगर ये फोर्स ज्यादा होता इन दैट केस तो अंदर की तरफ जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका इक्वेशन लेता हूँ तो t और mg cos थीटा है, I'm considering over here. So where exactly the force, which is the force required for the part for the body to perform circular motion? The force required for the body to perform circular motion is your centripetal force, and the word centripetal actually speaks about what? Radially inward force. So in that case, your t will be greater than mg cos theta. क्योंकि हमें एक सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए फॉर द बॉडी टू परफॉर्म, तो तुम्हारा यहाँ पे फोर्स ज्यादा होना चाहिए, तो डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेस is actually the resultant which is required for the body to perform circular motion, and that is which force? Centripetal. तभी जाके हमारा इक्वेशन हुआ t इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r। और स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला डिराइव कर चुका हूँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। Tension at any instantaneous position for a particle performing vertical circular motion which is non-UCM is mg cos theta plus mv square by r. फिर वो हिसाब से मैंने टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट निकाला, टेंशन एट द डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट निकाला, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट निकाला। कैन यू टेल मी व्हाट इज द टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट? स्टूडेंट्स, व्हाट इज द टेंशन एट द डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स? व्हाट इज द टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट? Lowest point will be 6 mg, diametrically opposite point will be 3 mg, highest point is always 0. ये सब कुछ प्रूव किया है मैंने। Students, are you all there? Yes Hello? sir। Yes, sir. तो ये क्या हो रहा है, तुम लोग एकदम लॉस्ट क्यों लग रहे हो? एग्जाम्स आर कमिंग, हार्डली 10 days भी नहीं है। And what are you doing? Dare you lose a single mark in circular motion or any of the chapters in physics? This is ridiculous. Today itself only I'll throw across with circular motion practice problems. I'm going to put across questions to you. आज मैं पोस्ट कर दूंगा तुम लोगों को। ऐसे नहीं करते स्टूडेंट्स, you should be consistently doing it. और जिस स्टूडेंट्स ने मेंटेन किया है नोट्स, those are successful. I don't know about it, whether you write down from the board or you redo it, you do, that is all your job students. मेरा काम है ये बता देना और मेरा काम है इसके बाद में ये इरेज कर देना। चलो ये इरेज कर दिया, तुमने लिखा नहीं लिखा वो तुम्हारी मर्जी। I've removed it.
हो गया, यहाँ से मिट गया, दिमाग से भी मिट गया तुम्हारा। द स्ट्रेंथ इज हाउ मेनी? स्ट्रेंथ इज 26। मैंने यहाँ पे मिटा दिया तो 26 में से 20 जन के दिमाग से भी मिट गया, कुछ याद नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स है कि बिना फिर लिखे फिर भी याद रखते हैं, और कुछ लिखते हैं उसको वापस रेफर करने के लिए। It's not the way to do studies. And centripetal force, Neha, is a real force. Centripetal, we consider, is a real force. How could you say it's not? Centrifugal is a pseudo force. Neha, Yes, sir. centrifugal, radially outward force in a non-inertial frame of reference is a pseudo force, imaginary force. अगर तुम कार के अंदर जाते हो और कार एक सडन लेफ्ट टर्न लेती है तो तुम राइट की तरफ जाते हो, तो तुम्हारा मोशन राइट की तरफ किसकी वजह से गया है? सीडो फोर्स की वजह से गया है। फोर्स लगा नहीं लेकिन फिर भी तुम राइट की तरफ चले गए, तो तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया भाई क्यों आए हो, तो सीडो फोर्स की वजह से है, लेकिन ना ही उसका ओरिजिन मालूम ना ही उसका सोर्स मालूम। स्टूडेंट जब फोर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस, रियल फोर्स एंड सीडो फोर्स। रियल फोर्स जिसका ओरिजिन एंड सोर्स है, जब यहाँ पे हम लोग ने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, भले वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो टेंशन वाज द कॉज फॉर सेंट्रिपेटल, was one of the force for the cause, and that is a real force, has an origin and source. Vertical circular motion में भी tension was a cause. And this real forces can be contact, non-contact. जब भी हम लोग ने ग्राफ बनाया था unevenness, convex या concave bridge का, तो body was in contact with the surface, तो वहां पे तुम्हारा real force कौन सा था? Normal reaction force, which is equal to the weight. वहां पे भी centripetal force था। तो फोर्स जिसका ओरिजिन होता है और जिसका सोर्स होता है उनको हम बोलते हैं रियल फोर्स। और जो फोर्स का ना ही ओरिजिन है, तुम्हें पता ही नहीं वो कहां से शुरू हो रहा है, और जिसका सोर्स भी नहीं पता, वो हो जाता है सीडो फोर्स, इमेजिनरी फोर्स। और वो हमेशा एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Students, it seems like that you all are going back. We are on the verge of completing the chapter. अब तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आई बी गोइंग विद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्या करोगे फिर? इज गोइंग ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ रहे हम लोग। मुझे बताओ स्टूडेंट्स, टेंशन लोवेस्ट पॉइंट पे 6 mg, डायमेट्रिकली 3 mg, टॉप मोस्ट 0 कैसे आया? कोई बता सकता है? उसकी वैल्यूज मैंने कैसे ढूंढी? हाँ स्टूडेंट्स, कोई बता सकता है? हाँ स्टूडेंट्स, कम ऑन, नेहा आंसर, नेहा, इजार, वृद्धि, आकाश, अनीता। हाईएस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैप करती है, उसका क्या टेंशन। क्या किया मैंने? सर अगर आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो तो अगर हम वर्टिकल सर्कुलर के लिए ही होता है ना टेंशन, टेंशन इज ऑलवेज वर्टिकल। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट होता है तभी स्ट्रिंग स्लैप करती है, जिसकी वजह से टेंशन हमारा 0 हो जाता है, क्योंकि नीचे की तरफ टेंशन फोर्स भी होता है, एमजी फोर्स भी होता है, और हाँ उसको हाँ सपोर्ट देने वाला बाहर की तरफ कोई नहीं होता। सिर्फ अगर हम हाँ, वेलोसिटी बढ़ा देते हैं तो लाइक वो सर्कल कंप्लीट कर देता है, बट वेरी गुड। वो वेलोसिटी बढ़ाने से क्या होता है, तुम्हारा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो जाता है वहां पर, और वो उसको होल्ड करके रखता है। वेरी गुड। नहीं तो बॉडी स्नैप हो जाएगा, बॉडी स्ट्रिंग स्नैप हो जाता है या स्लैकन हो जाएगा और बॉडी गिर जाएगा। दैट इज द मिनिमम वेलोसिटी, यानी v इज इक्वल टू अंडर rg डालोगे ना फॉर्मूला में, तो तुम्हें टेंशन 0 मिलेगा। फॉर्मूला क्या था टेंशन का? t इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r। एट द टॉपमोस्ट पोजीशन व्हाट एग्जैक्टली थीटा बिकम्स? फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से टॉपमोस्ट होगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 180। तो एक आंसर होता है माइनस mg, दूसरा होगा प्लस mg, आंसर 0 हो जाएगा।
Shouldn't see the way Vrutish has put forward the thing. Is it clear? Yes. आया ना? हाँ सर. Okay. So this is और जब भी तुम MCQs करोगे तो यहाँ पे तो मैंने दिया स्टूडेंट्स अभी सपोज मैं कहाँ पे तुम्हें टेंशन दे दूंगा मैं. MCQs में भी उल्टा होगा स्टूडेंट्स. टेंशन में दूंगा और तुम्हें पोजीशन पूछूंगा भाई पार्टिकल कहाँ पे. पार्टिकल कहाँ पे है? तो तुम्हें क्या ढूंढना है? पार्टिकल कहाँ पे यानी तुम्हें क्या ढूंढना है? थीटा ढूंढना है स्टूडेंट्स. समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम्हारा Yes, इक्वेशन तो sir. मालूम है. यानी तुम्हें टी पता है, तुम्हें mg मालूम है, mv²/r मालूम है, थीटा cos थीटा. अगर cos थीटा का आंसर तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या 0 आ रहा है, π/2 आ रहा है, पाई आ रहा है. आई गेटिंग इट? 3π/2 आ रहा है, क्या आ रहा है, या 2π आ रहा है. वेर एग्जैक्टली पार्टिकल इज तुम्हें पता चल जाएगा. उसे तुम उसका पोजीशन लोकेट कर सकते हो. ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे. यानी जरूरी नहीं that a teacher should do all problems with you. Hello, physics is vast. Physics is vast. लेकिन अगर तुम concept समझोगे तो you should be able to crack questions by yourself. No teacher entirely over here can do everything in physics with you all. Students, don't think in that manner. Somewhere or the other you have to put in efforts. तुम्हें भी लेके बैठना होगा. You can't expect कि जितना किया उतना हो गया. और जब भी तुम करोगे तो यही फील होगा कि कम ही कर रहे हो. और फिजिक्स के अंदर ही तुम्हारा स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, योर इंजीनियरिंग या मेडिकल का जो भी तुम्हारा एंट्रेंस होगा वो कौन सा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा? फिजिक्स और फिजिक्स ही डिसाइड करेगा. योर हर्डल इज ओनली फिजिक्स. You might score in chemistry, you might score in bio, but you may not, or your hurdle becomes physics if you are not consistently practicing physics. भले वो मेडिकल के लिए हो, इंजीनियरिंग में भी तुम मैथ्स में स्कोर करोगे, केमिस्ट्री में स्कोर, लेकिन कहाँ पे तुम्हारा हर्डल आएगा? फिजिक्स में ही आएगा. ये ध्यान में रखना. हाँ, कुछ टॉपिक्स तुम्हें इजी लगते हैं, कुछ टॉपिक्स तुम्हें ट्रिकी लगते हैं, तो वहां पे यू हैव टू बी प्रैक्टिसिंग इट, दैट्स ऑल. भले कोई बोले या नहीं बोले, तुम्हें आउट ऑफ द वे यू हैव टू सिट अक्रॉस एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. और जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है, पीछे की भूलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. You should go on practicing पीछे का problem. So what if the teacher tells you not to tell, he doesn't tell you anything? It's your job. You know it, how exactly you are in physics. You know it, whether you're forgetting it or you're still remembering it. क्योंकि पीछे के चैप्टर्स के सारे कंसेप्ट आगे आने वाले हैं. और नीट स्टूडेंट्स को तो कैलकुलस भूलना ही नहीं है, वेक्टर्स भी भूलना नहीं है, वो तो मस्ट है. पीसीएम स्टूडेंट्स को फाइन इनफ, जो इंजीनियरिंग के लिए आगे भी वेक्टर्स मैथ्स में उठाया जाएगा. कैलकुलस वापस रिपीट होगा मैथ्स में पूरा उनका, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ग्राफ्स, कोनिक्स, ट्रिगो, लॉग, सब आने वाला है आगे. तो वो तो हमेशा मैथ्स के साथ में खेल रहे हैं. स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम, मैथ्स हमेशा उनके साथ में रहेगा थ्रू आउट. तो उनको फिर फिजिक्स थोड़ा बहुत इजी लगेगा न्यूमेरिकल्स के हिसाब से. लेकिन नीट स्टूडेंट्स अभी कैलकुलस को छोड़ देते हैं, फिर गए प्रॉब्लम्स, फिर वापस पूछेंगे ये कैसा आया. Don't expect a teacher to tell you when they are in the 9th chapter, when the things are done in the 2nd chapter. This is not a school type study, so stop acting like small kids, school going kids. 8th में, 9th में, 10th में जैसे चल रहे तब यहाँ पे वैसे सोचना बंद करो. हाँ, उतना सीरियसनेस वैसे ही चाहिए. But somewhere or the other you have to put in more efforts. Efforts तुम्हारे तरफ से और ज्यादा चाहिए. And you know yourself, how exactly as a student are you? Okay, can you give me the answer for the 21st one, students? A long horizontal rod has a bead which can slide along its length and initially placed at a distance L from one end of the rod. The rod is sent in angular motion about A with constant angular acceleration alpha. If the coefficient of friction between the rod and the bead is mu, the gravity is neglected. Gravity neglect kiya, students, this is very important. Then the time after which the bead starts slipping. First of all, you try to understand with the small diagram and then think about it. And which part of the force you have to neglect it.
Yes, anybody? Rudy, can you answer? Sir, I'm figuring out that. I'll draw the diagram for you, students. They've given to you that is a rod is there. ये तुम्हारा axis of rotation है, students. ये सोचो कि एक rod रखा हुआ है. Okay, there's a rod over here, and there is a bead. Okay, there's a bead over here, and the distance of the bead from the rod is L. When the rod is performing circular motion, okay, they have stated circular motion with angular speed, such that उन्होंने clearly बोला that the rod is at an angular motion about A. Sorry, about A. ये point A है. Okay, about A with constant angular acceleration. Students, what is angular acceleration? What is the variable for angular acceleration? M omega square. हाँ, angular acceleration, Neha. What is the variable? Alpha. Alpha. Symbol. तो alpha constant है. Students, अगर alpha constant है, तो can you tell me what is the graph of omega versus time and alpha versus time? हाँ, अगर alpha constant है, तो कहने से omega will increase. कुछ समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स देखो फर्क क्या है यार, काइनेमैटिक्स में पढ़ा है, रोटेशनल पढ़ा है. अगर यही चीज में लीनियर मोशन में बोलता तो अगर गाड़ी का स्पीड बढ़ाते हो तो व्हाट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसे जाएगा. व्हाट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा सीधा. क्यों क्यों इतना सोच रहे हो, कितना टेंशन ले रहे हो? तुम क्या कर रहे हो, सर्कुलर को ऐसे बहुत सोच रहे कि सर्कुलर है. अरे यार दिमाग के अंदर क्लियरली मैंने बताया कि लीनियर क्या है और सर्कुलर क्या है. सारे एनालॉग टर्म्स दे दिए थे, सब कुछ दे दिया था. तो हाउ कैन यू चेंज योर थॉट प्रोसेस? ना यहाँ पे अगर मैंने बोला कि अल्फा कांस्टेंट है, उसका मतलब तुम्हें क्या सोचना है? उसका मतलब तुम्हें क्या सोचना है कि रॉड फास्ट घूमते जा रहे हैं, यानी रॉड का स्पीड बढ़ रहा है. देखो ना, ओमेगा इज इंक्रीजिंग. तुरंत जैसे टाइम बढ़ेगा ओमेगा, तो तुरंत तुम्हारा एग्जाम्पल, तुम्हारा ये जो क्वेश्चन दे रहे तो तुरंत तुम्हारा नजर जानी चाहिए तुम्हारे पंखे के ऊपर. तुम्हारे राइट नाउ यू आर सिटिंग और लुक एट टॉप ऑफ इट, शायद पंखा चालू होगा और शायद 2 पे ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, या 1 पे होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा क्योंकि ठंडी चल रही है. तो वहां पे अगर देखोगे तो पंखा अगर रखोगे, अब यही सोचो कि तुम पंखे को बंद करो और उसके ऊपर एक शार्पनर रखो, फिर उसके ऊपर शार्पनर रखो और पंखे को 1 पे चलाओ, तो तुम्हारा शार्पनर अभी भी होल्ड हो रहा है. ये वो वाला क्वेश्चन है, ये शार्पनर हो गया बीट की जगह पे. थोड़ा सा समझो. That much also you don't have your observation, then forget about it. Leave physics, leave science. Shift back to lower standards, learn some better physics, and then think about giving medical and engineering. I'm telling you very clearly on your faces. Somewhere you should also imagine, जब तक तुम लोग ऐसा नहीं सोचोगे ना, you will not score in physics. You don't expect that a teacher should all the time try to work out with you all the time. अभी ये कंसेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए, तो बहुत इजी हो गया. अगर तुमने शार्पनर रखा है और पंखे को 1 पे घुमा रहा है, तब तक शार्पनर होल्ड हो रहा है, वो ब्लेड के ऊपर रहेगा जैसे बीड यहाँ पे है. लेकिन जैसे तुमने पंखे को 1 से 2 पे घुमाया, 2 से 3 पे गया, तो क्या होगा? सर अभी उसका मोशन एक्सेलरेट हो रहा है, भाई स्पीड बढ़ा रहे हो आप. तो एक पॉइंट पे अगर स्पीड ज्यादा बढ़ गया तो क्या शार्पनर वैसे रहेगा, विल फ्लाई ऑफ. सर उसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो निकल जाएगा बाहर. तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाएगा, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाएगा. So in that case, what happens in that case? It will fly off. लेकिन उसको पहले होल्ड करके कौन रख रहा था? फ्रिक्शन रख रहा था ना. अभी फोर्सेस ले लो, अभी फोर्सेस ले लो. ये देखो, इसका वेट mg नीचे की तरफ जाएगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा. ये जो बीट है या शार्पनर है वो परफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके लिए होगा क्या? तो उसके लिए एक फोर्स सेंटीपिटल चाहिए, वो इस तरफ एक्ट होगा. एग्रीड? फोर्स सेंटीपिटल इस तरफ एक्ट होगा. लेकिन अगर तुम ध्यान से रीड कर तो उन्होंने क्या किया है,
with a constant angular acceleration, if the coefficient of friction between the rod and the bead is mu, the gravity is neglected, then the time at which bead starts slipping का मतलब खिसकना शुरू हो रहा है, यानी वो बार फेंका जाना शुरू हो रहा है। टाइम एडजस्ट उसको बाहर निकलने को मिल रहा है, तो उसको बाहर निकलने को मिला, तो उस टाइम पे तुम्हारा कोई फोर्स बाहर की तरफ उसको लेके जा रहा है। कौन सा है वो? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। अगर ये बाहर की तरफ जा रहा है तो अंदर की तरफ कौन सा होगा? फ्रिक्शन होगा। स्टूडेंट्स ये क्या है? ये लॉस ऑफ मोशन का ही तो है ना? हाँ, Yes, ये क्या sir. कुछ अलग कर रहा हूं? भले मैंने सेंट्रीफ्यूगल डाल दिया तो उसका मतलब सर्कुलर हो गया। डोंट ब्लेम द चैप्टर फॉर दिस, कि ये फोर्स के बारे में आ रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट को मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा होता तो मेरा अप्लाइड फोर्स हो जाता, वो खींच रहा हूं मैं इस तरफ और उस तरफ फ्रिक्शन हो गया। लेकिन जैसे सेंट्रीफ्यूगल आ गया तो सर वी आर नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ सर्कुलर मोशन, वी आर एबल टू सॉल्व न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बिकॉज़ सेंट्रीफ्यूगल वर्ड इज कमिंग। ये हो रहा है तुम्हारा। तुम हर एक चैप्टर का फिजिक्स अलग अलग से देखते हो। स्टूडेंट्स फिजिक्स सारों में सेम ही आता है, अलग नहीं होता है। जब तक वो नहीं समझोगे ना, यू विल नॉट बी मूविंग फर्दर इन फिजिक्स। ये तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल हुआ, ये फ्रिक्शन हुआ, लेकिन अभी तक होल्ड करके जस्ट स्लिपिंग का मतलब मैं इक्वेट कर सकता हूँ, क्यों नहीं? एंड यू हैव अ टैंजेंशियल फोर्स, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा एक टैंजेंशियल फोर्स मिलेगा, कि इट्स गोइंग टू, जैसे पार्टिकल जाएगा तो वो टैंजेंशियल फोर्स जाएगा, देयर विल बी अ टैंजेंशियल फोर्स एक्टिंग। फोर्स टैंजेंशियल, यानी स्टूडेंट तेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन कर रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्चुअली बैलेंस्ड बाय होम? Force centrifugal. Can I say it's force centripetal also? Students, centrifugal and centripetal are equal in magnitude and opposite in direction. Yes, sir. तो अगर जैसे वो स्लिप होगा तो how exactly the body is going to go? So the body is going to go tangentially. एक सेंट्रीफ्यूगल, यानी इन दोनों का देखो, ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, टेंजेंट, इनका जो रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में बॉडी तुम्हारा स्लिप होकर चला जाएगा बाहर। लेकिन टाइम एट विच इट जस्ट स्लिप्स, यानी स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है एट दैट इंस्टेंट, यानी उस टाइम पे जब वो शुरुआत होती है, ना कि उड़ गया। तो हमें यहाँ पे सिर्फ इक्वेट करने हैं फोर्सेस को, बस। तो मैं अभी ये फोर्स को निकाल दूंगा। नाउ आई विल कंसीडर दीस आर द फोर्सेस। अभी तुम्हारा डायग्राम क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? Yes, sir. ऑल ऑफ यू ऑल? नेहा क्लियर? Yes, sir. Okay, Vruti, what about you? Yes, sir. Okay. What about the rest of the guys? Akash, Arif, Ivo, Yes, sir. Understood. Yes, sir. Karan, Yes, Kushali, sir. Ikrar, Veer, Yes, sir. Daksh, शुभम, स्वयं, ऋषभ, क्या कर रहे हो? सारे सो रहे हो? आपने उठा दिया मुझे, नींद से उठा दिया। सर आप ऐसे ही आवाज़ निकालते हो ना तो हमें ऐसा थोड़ा लगता है कि क्लासरूम थोड़ा सा लाइवली है, सोने का मन नहीं करता है, लेकिन सो जाते हैं फिर भी। अभी देखो, अभी 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 करो स्टूडेंट्स, तो ये दोनों फर्स्ट सपोज इन दोनों को इक्वेट करो स्टूडेंट्स। तुम्हारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल क्या होगा? फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल के फॉर्मूला यहाँ पे क्या होंगे? फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल के फॉर्मूला यहाँ पे क्या होंगे? सर फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल के यहाँ पे मैं फॉर्मूला लूंगा तो एम एल ओमेगा स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाय एल, एम आर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी एम वी स्क्वायर बाय ना एम इंटू वी इंटू ओमेगा। Sir, ये तीन first फॉर्मूला। one. First one. ml omega square, so force centripetal is ml omega square is equal to force of centripetal, force of friction. Okay, so ml omega square, what is force of friction? Is mu s into normal reaction force, है ना? Yes, sir. Now tell me, should I go for normal reaction force is equal to 8? है ना? बीड रॉड के ऊपर है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर जाएगा, वेट नीचे की तरफ जाएगा।
So can I put n equal to mg? Yes, sir. Rudy, आया ना? Yes. No, gravity is neglected. Yes, sir. Gravity Sir, we'll consider neglected. alpha in that, right? हाँ, यानी अभी mg नहीं पकड़ेंगे, यानी तुम बोल सकते हो कि n को कौन इक्वेट कर रहा है, n को कौन Tangential force. tangential force. वो एक फोर्स है जो इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन हम बॉडी को इक्विलिब्रियम में ले रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि आमने सामने वाला फोर्स में ये ग्रेविटी को हमें निग्लेक्ट करना है। अगर निग्लेक्ट कर दूं तो मेरा mg है, लेकिन मैं उसको नहीं कंसीडर करूंगा, तो मैं n की जगह पे उसको क्या लिखूंगा, n को मैं फोर्स टेंजेंशियल लिखूंगा। तो m l ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू s इनटू फोर्स टेंजेंशियल। So it's m l omega square is equal to mu s. What is force tangential? Mass into acceleration tangential. M cancel हो जाएगा. So it's L omega square mu s. What is acceleration tangential? Students, what is acceleration tangential? R into alpha. Are you getting it, students? Yes, Can you sir. get Yes, sir. the formula? ये देखो L cancel हो गया. Can you get the formula for angular velocity? It's what? Mu s into alpha. क्या ये clear हुआ? Yes, sir. Is that clear? तो तुम्हें ओमेगा का आंसर मिल जाएगा. लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? Time. Time चाहिए. Now read the question. A long horizontal rod has a bead which can slide over the length and initially placed at a distance L from one end of the rod. The rod is set in angular motion. The rod is set in motion. So what is the initial angular velocity? 0 radian per second. Can I say this is the angular velocity at time t? At time t, T. where the bead just starts slipping, where bead just starts to slip. आया ना? सर इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा ना? हाँ, तो एक काइनेमैटिक्स आ जाएगा, हाँ, रोटेशनल काइनेमैटिक्स आएगा. अल्फा तो कांस्टेंट दिया ही है, तो कौन सा फॉर्मूला होगा? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, अल्फा इनटू टी. ये बताया कि नहीं बताया स्टूडेंट्स तुम लोगों को? स्टूडेंट्स ये बताया कि नहीं बताया? बताएं। ना मत बोलो, ना Yes, बोलो. sir. एक पंच ऐसा स्क्रीन के अंदर आके, तुम्हारे घर के अंदर आके एक सीधा ऐसा होना चाहिए ना, एक सिस्टम होना चाहिए. जो भी स्टूडेंट सामने बैठा गलत आंसर दिया तो पूरा स्क्रीन में से एक ऐसा बॉक्स निकलना चाहिए स्प्रिंग वाला, ठप करके मुंह पे और वापस अंदर चला जाना. बड़ा मजा ना, कोई सो ही नहीं सकता था. हाँ, कोई स्टूडेंट सो ही नहीं सकता था. ओके स्टूडेंट्स, ये तुम्हारे काइनेमैटिक इक्वेशंस है. आई टोल्ड यू लीनियर एंड दीस आर एंगुलर. अच्छा मुझे बताओ स्टूडेंट्स, कैन यू गिव मी द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन. n minus s n minus 1. हाँ, लेकिन आई वांट द फॉर्मूला. रुधिर, आई वांट द फॉर्मूला. Nth is equal to u plus a into bracket n minus half. अच्छा तो यहाँ पे क्या आएगा? Sn की जगह पे थीटा आएगा. थीटा फॉर nth पॉइंट. देखो ये मेरा फॉर्मूला भी मैंने कराया होगा, या मैंने बोला होगा, या मैंने दिया नहीं होगा, लेकिन तुम्हें इजीली पता जब भी मैंने एनालॉग बता दिया है दोनों के बीच में, तो क्यों इतना टेंशन? एस की जगह पे थीटा फॉर nth. अगर ये नहीं भी दिया तो सर यू हैवंट टोल्ड अस द फॉर्मूला क्वेश्चन केम एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, कितना मेमोराइज करोगे? हाँ स्टूडेंट्स, डोंट यू फील क्रेजी? इज योर ब्रेन अ सीपीयू, अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? कितना कुछ No, रट्टा sir. मारोगे? कितना रट्टा मारोगे? तो एक समझ के करोगे तो स्टूडेंट्स याद रहेगा. एक आदत रहो. मेमोरी कैपेसिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए स्टूडेंट्स. फिजिक्स के लिए चाहिए, गुड मेमोरी भी चाहिए, क्योंकि कहाँ कहाँ पे तुम पूरा डिराइव करने नहीं बैठोगे, इसलिए कुछ लेंथी फॉर्मूला तुम्हें याद रहना चाहिए. इसलिए स्टूडेंट्स, मामा अगर सुबह बादाम देती है तो खाया करो, मुंह मत बिगाड़ो.
So in that case, what exactly your formula for this will be? Theta for n second of motion will be equal to what? A की जगह पे अल्फा या सॉरी u की जगह पे ओमेगा 0 आ जाएगा, प्लस आएगा a की जगह पे अल्फा आएगा, बाकी ब्रैकेट में n माइनस हाफ वैसे ही रहेगा. Okay, so final angle will say initially plus alpha and ये टी चाहिए बस. हो गया तुम्हारा आंसर. ओमेगा क्या है? What exactly omega is getting in terms of it? Root mu alpha. हाँ तो ये 0 हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी. हमें क्या करूँगा, स्क्वायर लिखता हूँ मैं. तो टी स्क्वायर क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर. how much is omega square students? मैं ये लेता हूँ मैं. omega square will be equal to what? mu s into alpha upon alpha square. एक alpha cancel हो जाएगा. What is t? Will be under root mu upon alpha. Which option is this, students? ये कौन सा ऑप्शन दिया है? Sir, option A. A. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Can I erase it now? No, sir. Please wait. No, sir. एक दफे पीओ की ममा को मिलके सारे कंप्लेंट्स करनी है पीओ के बारे में, है ना पीओ? No, sir. Please don't. He's the best mom. I feel like that. In charge at home. Please go. Those who have written, go with the 22nd one. 22nd one is also, students, it's easy for one to crack it. Yes, sir. Done. 22nd done. बताओ पीओ, come on, answer. No, fast. sir. Sir, I said noting from 10. the board. Ma'am. Everybody, 22nd See, sir. one. Neha also got what 5 points. 22nd is the toughest one. अभी पीओ तुमने आंसर नहीं दिया तो I'll force you to call your mom on the screen right now. वीडियो ऑन करा के मैं उनसे बात करूंगा, देख लेना. 22nd will be solved none other than by पीओ. चलो पीओ आंसर. अगर तुमने आंसर नहीं दिया तो I'll remove you from the meeting. पहले तो तुम्हारे मामा से बात करूंगा, अगर तुमने मामा को नहीं बुलाया तो तुम्हें मीटिंग से बाहर निकाल. Students, she said it na 22nd? Yes. बताओ पीओ. First, try to understand the question. You can you make me understand question? What exactly it is? The upper end of a string of a simple pendulum is fixed to a vertical z-axis and set into motion such that the bob moves along the horizontal plane. So it can made to move in an xy plane. Okay, it's move in a horizontal circular path of radius 2 meter parallel to the xy plane we consider 5 meter above the origin. Students, अभी इसका तुम technically अगर diagram draw करो, you don't get scared, okay? Look over here, students. Okay. Now please pay attention. अभी तुम क्या करो, एक imaginary students यहाँ पे horizontal में x axis दिखा रहा students. और ये मैंने y axis से horizontally ऐसा दिखा दिया. Okay. तो ये जो है तुम्हारा perpendicular तुम्हारा z axis होगा. Okay. This is z axis I will consider. ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है. अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने होल्ड करके रखा है आगे को, और स्टोन यहाँ पे. Let us assume in this manner the stone is over here. Okay. So the upper end of the string of a simple pendulum is fixed to a vertical z-axis and set into motion such that the bob moves along a horizontal circular path. यानी students, ये string है, ये bob है, और यहाँ से मैं होल्ड करके रख रहा हूँ, और फिर मैंने इसको रिवॉल्व किया. स्टूडेंट्स, आई एम मेकिंग इट टू रिवॉल्व इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. नाउ कैन यू टेल मी, अगर इसको रिवॉल्व कर रहा हूँ इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, सो कैन आई से इट्स मेड टू रिवॉल्व इन एन XY प्लेन. ये देखो, इसी का प्लेन पैरेलल हो गया. ये तुम्हारा कौन सा है?
दिस इज x, है ना? ये कौन सा प्लेन है, ये कौन सा एक्सिस है सर? ये y होगा. तो can I say it's exactly parallel to it? Yes. What is the radius of the circular path? The radius of the circular path is equal to how much? Given to you as 2. तो ये जो distance दिया है students, that is given to you as 2 meter. That's the radius of the circular path. ऊपर से उन्होंने क्या दिया है? Parallel to the xy plane 5 meters above the origin. ये तुम्हारा origin है 0,0,0. तो 5 meters above the origin. तो ये जो height है students, ये जो height है, ये जो height है, that means the height along z axis. That is 5 meters is given to you. Okay. 5 meters above the origin. Wait a minute, where am I? The bob has a speed of 3 meters per second. So now bob has a speed. Yani what kind of speed we consider? It's a tangential speed we consider. I get it. Yani speed along a tangent. It's always, how is v and r? So how is v and r? V and r are mutually perpendicular. मैंने बता दिया था dot product is always 0. अगर stone यहाँ पे है, I get it, तो ये उसकी velocity है, which is 3 meters per second. यहाँ पे होगा तो ये उसकी velocity. यहाँ पे होगी तो ये इसकी velocity है. यानी यहाँ पे होगा तो how exactly it will go? ये ऐसे जाएगा along ये, यहाँ पे होगा तो I क्या है ना स्टूडेंट्स? अगर ऐसे लिया तो इट्स गोइंग टू गो along parallel to this. ये ऐसे होगा तो उस तरफ जाएगा, ये ऐसे होगा तो इस तरफ जाएगा. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये tangential Yes, velocity हो गया. sir. How much is that? 3 meters per second is given to you. The bob has a speed of 3 meters per second. The string breaks when the bob is vertically above the x-axis. String कभी break होता है when the bob is just above the x-axis. है ना? Above the x-axis, and it lands in an xy plane. Find out x, y. यानी जब भी bob just above the x-axis, तो ये x-axis है, just above, यानी ये position पे. ये तो करा, ये x-axis है, इसी का parallel above. अगर उस टाइम पे स्ट्रिंग टू अभी हॉरिजॉन्टल मूव है, यानी स्टूडेंट्स ये कोनिकल पेंडुलम हो गया. आंसर तो ना, पेंडुलम अभी तुम्हारा यहाँ पे है, पेंडुलम तुम्हारा यहाँ पे है, पेंडुलम तुम्हारा यहाँ पे है, और पेंडुलम तुम्हारा, ये कौन सा आंसर हुआ सर? ये कोनिकल पेंडुलम के जैसा चला गया. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? है मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, लेकिन उसी टाइम पे वो स्नैप हो गया. So now can I say because it gets snapped, what kind of path the stone is going to have? So the tangential velocity of the path is going to be what? Parabolic. है ना? Yes, sir. वो कौन सा होगा? Parabolic होगा. तो अगर इसका path parabolic है students, if the path is parabolic, it's going to land somewhere. Are you getting it? It's going to land somewhere where? In an xy plane. I need to find out x coordinate and y coordinate. पता चला क्या पूछा है? Yes, sir. Is the diagram clear? हाँ. यानी अगर तुम डायग्राम देखते हो स्टूडेंट्स ऐसे, यानी दिस इज स्टूडेंट्स इट्स फॉर AIPMT का क्वेश्चन है. एट द सेम टाइम इट इज आस्क्ड इन द, ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये एडवांस का क्वेश्चन है. Yeah, actually 22nd is an advanced question. Can be considered in terms of AIPMT also. That's what. Now can you get an answer by yourself? स्टूडेंट्स मुझे बताओ, जब भी ये स्ट्रिंग स्नैप होती है, ये जब ये स्ट्रिंग स्नैप होती है स्टूडेंट्स, ये देखो ये बॉब यहाँ पे है. You for that you have to listen properly and read the question properly. Students, अगर मैंने ये बॉब को ऐसे लिया है और वो कोनिकल पेंडुलम में जा रहा है स्टूडेंट्स, तो देखो सबसे बॉब पहले तो ऐसे हुआ है. आई गेटिंग इट? यानी ये डिस्टेंस कितना हुआ? 2. आई गेटिंग इट? फिर ये हाउ मच इट इज? 5. आई गेटिंग इट? So now if I happen to consider it's at a height of 5, it's at a distance of 2. So what are the coordinates when it gets snapped?
Sir, students, x what- greater than 2 ना? नहीं, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा जब वो स्नैप होता है इस पोजीशन पे तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? कैन यू टेल मी इट्स कोऑर्डिनेट्स x y z? तुम बोलोगे सर इट्स अलोंग द x एक्सिस, तो उसका रेडियस कितना होगा 2, y कोऑर्डिनेट विल बी 0, z sits at a height of 5. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Students, ये 3 डायमेंशनल है, उसके लिए 3D पीयू अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 3D के क्लासेस होंगे तो 3D के क्लासेस में नो स्टूडेंट्स। ये फिजिक्स को समझने के लिए यू नीड टू थिंक इन दैट मैनर। अगर थॉट प्रोसेस वैसे नहीं जा रहा, then I'm feeling it very sorry for you all. Physics will be the toughest subject for you all then. You need to get 3D classes for this. Just imagine करो ना कि ये ऊपर you can't draw a 3D figure over here. I'm getting it, but I've tried my best to see to that it looks like in that manner. फिर भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो please, I have nothing to do with it now. I've tried my best to see to it कि how exactly things can come across. बॉब यहाँ पे था, मैंने उसको डिस्प्लेस कर दिया तो ये तो 2 मीटर रेडियस हो गया। Are you getting it? Yes, sir. So उसका पोजीशन क्या होगा? x एक्सिस से कितना है? ध्यान से सुनना, ये x एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये x एक्सिस है। If in case if I happen to consider 2 meters, what exactly the distance of the ball from the x axis I'll consider will be 2 meters. We consider. Are you getting it? Yes, sir. Y coordinates will be 0 and its z will be 5. And उस टाइम पे जब ये snap होता है, students, as a string breaks, the particle starts from. As string breaks, particle starts from and has velocity of how much? 3 meters per second. And that is the velocity along which axis? It's the velocity along which axis we can consider. So velocity along which axis it is? It's in an xy plane we consider. Are you getting it? Yes, sir. Yes. Now can you give an answer? What is the distance covered? यानी इसका x coordinate तुम्हें पता है, तुम्हें उसका सिर्फ y coordinate चाहिए, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। सिर्फ हमेशा वो 2 मीटर की दूरी पे तो है ही। Again, उसका distance from x axis will be 2 meter, but where exactly is going to land? At what position? अगर तुम देखोगे students, तो मुझे बताओ x, y क्या होगा यहाँ पे? x, y का मतलब क्या हुआ? Which is the x coordinate? Sir, ये distance is the x coordinate. हाँ या ना? तो ये Yes, distance sir. है, are you getting it? And that is how much equal to 2 meter? वो तो हमेशा रहेगा। तुम्हें y coordinate नहीं पता, तुम्हें y coordinate चाहिए, y coordinate चाहिए, कहाँ से शुरू हो रहा है? Origin से शुरू हो रहा है, तुम्हें y coordinate चाहिए, तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? तो बोलोगे सर सिंपल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन करो क्योंकि पाथ तो पैराबोलिक जा रहा है। स्टूडेंट्स, ये पैराबोला होगा कि नहीं? प्रोजेक्टाइल मोशन, तो कौन सा फॉर्मूला होगा? s is equal to ut plus half at square. Displacement we consider. Are you getting it? Yes, sir. Along y axis I'll consider will be agreed. ये क्या होगा तुम्हारा? Initial velocity along y axis we consider. Are you 0. getting it? Yes, I'll consider will be 0. So ये तुम्हारा acceleration will be there minus half gt square. So you can get your answer accordingly. ये डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या है? तुम्हारा वर्टिकल कितना है स्टूडेंट्स? ये जो तुम्हारा इक्वेशन क्या होगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्टूडेंट्स। यहाँ से तुम्हें टाइम मिलेगा और फिर तुम्हें हॉरिजॉन्टली इन टाइम निकालना है स्टूडेंट्स। ये जो y एक्सिस का होगा ना स्टूडेंट्स, वो क्या होगा मालूम है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे तुम्हारा टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, स्पीड अलोंग y एक्सिस, यानी तुम्हें ये डिस्टेंस तुम्हें पता होना चाहिए। स्पीड तुम्हें पता है, हाउ मच एग्जैक्टली स्पीड वी कैन कंसीडर। Speed is equal to distance upon time. तो अगर मुझे distance चाहिए students, I can go for simply distance is equal to speed into time, and I can get my answer accordingly. सिर्फ तुम्हें यहाँ पे time चाहिए, तो तुमने motion कहाँ से शुरू किया? Sir, the height at which it's made to move, it's 5. ये students क्या मालूम है? ये question कौन सा मालूम है? Projection from a height. Suppose अगर मैंने building के ऊपर से stone को फेंका, are you getting it? That's what we consider. Initial velocity तुम्हारा 0 होगा, half into acceleration along y axis will be acceleration due to gravity into t square. Agreed?
Let us say G has 10. अगर मैं G को 10 ले लूँ तो क्या आंसर होगा? What exactly time taken will be 1 second? Can I put time over here as 1 second? Yes. How much is the speed? Horizontally 3 into 1. What's my answer? So what exactly the coordinates will be? 2, 3. Is this clear, students? Yes, sir. Yes, sir. Students, once again, ये है तुम्हारा projection along at a height from the z-axis 5 meter. So students, it's a 3-dimensional structure. It's going in this manner. फिर वो snap होता है. तो जैसे वो snap होगा, तो वो displacement का वर्ग path parabolic हो जाएगा. So now using the formula S is equal to ut plus half it square. So initial I'll consider will be equal to 0. Its motion starts from there. Displacement, what exactly? It's going perpendicular downward. If we consider displacement is what? Initial to final position, and that we consider as the ground. That is 5 meter. G is 10. So you got time taken for it to reach in an xy plane. Time taken for it to reach in an xy plane is 1 second. What is the speed along the y-axis? We consider 3 meter per second. We consider. So now, if I happen to consider then speed into time, so what exactly 3 into 1 will be 3. What exactly the coordinates will be 2, 3. Is this clear, students? Yes, sir. All of you Yes, are. sir. Fine. Yes, sir. Okay. What about guys? What about guys? Akash, is it clear? Yes, sir. Arif, Isar. Yes. Okay. Guruji, is it clear? Taksh? Yes, sir. There is somebody who entered in right now. Oj, were you there before? Oj, तुम पहले थे? Yes, sir. समझ में आ रहा है Oj? Yes, sir. Okay, Khashali. And Farhan, you entered right now. What? Devansh Parab also. Who's this Devansh Parab? Late आया भाई तू फरहान के साथ में. Devansh, are you there? You're from Kharghar. Devansh from Kharghar. Did you enter the lectures late? No reply. Quick friends, can I erase it? फ्रेंड्स यही क्वेश्चन को वापस समझने के लिए तुम क्या करना मालूम है, अपने स्टडी टेबल के ऊपर ऐसे पेन्स रखना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर एक स्टोन लेते हुए उसको सर्कल में करना और क्या पोजीशन से वो लैंड हो रहा है उसको ऑब्जर्वेशन में करते हुए यू विल ट्राई टू डू इट, यू विल बी एबल टू ट्रेस इट, तुम्हें परफेक्टली पता चल जाएगा. क्या मैं इसको इरेज कर दूं स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Okay, students. Now I wanted to solve the few last questions, students. Page number 95 only. Same. ये सारे तुम्हारे students ये advanced वगैरह के questions हैं. Okay, that's fine. You'll be able to crack it. अगर तुम्हारा थोड़ा strong हो, you'll be able to crack it, students. Students, I wanted to solve on page number 95. Question number 1. Please put down. Question number 1. Question number 2. Question number 4. Question number 6. And question number 9. 1, 2, 4, 6, and 9. All those questions.
Yes, friends, anybody for the first one? Anybody for the first one, students? One answer, Mariam, Devansh, Parab, Farhan, Yes, sir. Vishali, Oj, Piyush, Just a second. Pratham, Rishabh, Rishika, are you there, Rishika? Yes, sir. Solve करो चलो. First वाला question read करो, Rishika. Yes, sir. A sphere of a mass 200 gram is attached to an inextensible string of length 130 centimeter. Those upper end is fixed to a ceiling. The sphere is made to describe a horizontal circle of radius 50 centimeter. Calculate the periodic time of its conical pendulum and tension in the string. Yes. तो क्या पूछा है? Is it a question based on the conical pendulum? Yes, हाँ sir. सर, टाइम पीरियड पूछा. So can I say ये तुम्हारा diagram होगा? है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये तुम्हारा point of suspension होगा तुम्हारा. ये Yes, angle sir. होगा with the vertical. ये center है. Now if I say ये क्या बन जाएगा? Radius. Okay, radius. ये क्या हो जाएगा? Perpendicular height. Right. और ये हो जाएगा slant height. Length. Agree? Now, how Yes, much is sir. the mass given to you? Mass is given. Who's answering? Who was the girl who was answering? I was telling that girl to answer. Rushika, Rushika, Yes, Rushika, yes, Rushika, sir. Rushika. तुम्हारे answers दूसरे दे रहे हैं. Sir, they only started saying so. I was But you didn't fight. You didn't fight. They are very smart. उनको answer देना है. ये सारे नेहा, वृद्धि, सबसे smart तो पीयू है. बिंदास अंदर आ जाएगी, लेकिन you should be giving answers. Okay, yes, doesn't sir. सारे friends, okay. Mass is 200 grams दिया हुआ है, okay. Is attached to inextensible string of length. तो length यानी क्या दिया है? H दिया है, R दिया है या L दिया है? L. Oh, Sir, sorry. L. देखा देखा, बोला ना पीयू देखा जम मारेगी. Sorry, sir. या देखा. L is equal to how much? 130 centimeter. Twin is given to stories whose upper end is fixed to a ceiling. The sphere is made to describe a horizontal circle of radius. So R कितना दिया है तुम्हें? 50 centimeter दिया हुआ है. Question पूछा है calculate the periodic time of conical pendulum and tension. अब यहाँ पे ध्यान से देखो. Time को मैंने T लिया है और tension को मैंने T dash लिया है. Because see, I'm not going to use same variables. Students, ये भी तुम don't get confused when you're solving it. हाँ? समझ के करना. जब भी तुम resolve करोगे forces को, तो please try to take it very clearly. T stands for time period of conical and tension. Chalo, now can you solve? Rushika, Yes, sir. bolo. Sir, tan theta is equals to base upon hypotenuse. देखा, पूछा था ऋषिक. अभी निखिल भाई कौन आया भाई? निखिल कौन आया अभी? Somebody called Nikhil entering right now. निखिल था ही नहीं पहले. Students, निखिल था पहले? No idea.
नहीं, नो आइडिया ना, कोई भी आंसर हो रहा है। मीरा रोड वाला निखिल, मीरा रोड वाला सर होगा नहीं तो। है अभी। अच्छा, नहीं, ही इज जॉइनिंग इन। ओके, यस, कम ऑन, आंसर। ऋषिका, आंसर। Yes, sir. Sir, we will find time period. Okay, what's the formula for time period? Sir, 2 pi root L cos theta upon G. क्या बात है यार, सही जा रहे हो। किसने बताया तो नहीं ना, किसी को पूछा नहीं ना? No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी लेकिन cos थीटा नहीं दिया तुम्हें। Sir, we will have to find cos theta. So we are provided with L also and R also. So we will find L square minus R square. अरे क्या बात है, यानी सबसे पहले यू मीन टू से h तुम्हें cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज ना। Yes, sir. ओके, सो तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L cos theta. So it's L into cos theta is equal to h by L into g. So L cancel हो जाएगा. So you mean to say time period is 2 pi under root h by g, है ना? Yes, sir. ओके, क्या बात है। यानी तुम्हें g कितना है, g कितना दिया है, g मैंने दिया नहीं है, तो g you have to take it as, चलो मैं assume करो g को 10 ले लेना, चलो। ओके, लेकिन अगर तुम्हारा कैंसिलिंग फैक्टर होगा तो 9.8 लेना। स्टूडेंट्स h तुम कैसे बोल रहे हो, कैसे निकालना है? How do you find out h? Under root L square minus R square. That's what you decided to say. Yes, sir. Okay, fine. So what is the value of h you got it at? Sir, it would be one. Sir, we will not convert 130 centimeter into meter, like 1.3 meter. क्यों यार, ऐसा मत करो ना, ये बोर्ड के क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तुम। All are in centimeter only. क्या देखा, बोला ना पीयू को बोलना है, नहीं बोलना ही है। देखा, पीयू wants to be into your good books. ऋषिका, Yes, sir. she wants to become your very good friend. besties, Sir. exam, FBB. हाँ बोलो। Sir, but G is given in meter per second. वो तो बात की बात है ना माय डियर नेहा, बाद में जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तभी, अभी तो एच यहाँ पे तुम सेंटीमीटर में रखो ना, Okay, तो sir. बाद में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी तुम देखो ना। अभी तुम्हारा कैलकुलेशंस को इजी बनाओ, पढ़े नेहा। Yes, sir. ओके, चलो क्या आंसर आ रहा है H उसका? is equal to 120 आ रहा है. Yes, क्या sir. बात, 120. 120 व्हाट, कॉकरोचेस या बफेलोज या 120 सेंटीमीटर? Centimeter. हाँ, तभी देखो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट h इज 120 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा अपॉन 10। ये कैंसिल हो गया, तो कहने से t विल बी इक्वल टू 2 पाई 10⁻⁻2 का 10⁻⁻1 आएगा, रूट ऑफ 12, सो 4 into 3, तो क्या आंसर आएगा? 6.28, रूट ऑफ 4 is 2, रूट ऑफ 3 is 1.732 into 10⁻⁻1, कहने से that becomes a time period. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. रूट 12 is 4 3 था तो 2 रूट 3 होगा, तो 2 पाई का वैल्यू कितना होगा? 6.28। रूट ऑफ 4 is 2, रूट 3 तुमने 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारा सॉलिड ज्योमेट्री किया है ना? कोन, सिलेंडर, है ना? बिना एग्जाम दिए पास हो गए हो सारे 10th, है ना? तो अभी तो कुछ मैथ्स तो एकदम सही तरीके से किया है तुम लोगों ने। रूट 2 रूट 3 की वैल्यू मालूम है, तो रूट 3 की वैल्यू 1.732, ये तो आनी चाहिए। हर एक 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, भले वो एसएससी हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या आईसी, एवरीबॉडी शुड नो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। So now when I multiply this, I'll get the time period. Am I getting it? अभी Sir, क्या बोलो? 2.1 seconds आ रहा है. 2.2. 2.1 second आ रहा है मेरे को. Yes, sir. 2.175. 2.175. Okay, fine. Chalo, agreed. I take it. Very good. Okay. Now tension कैसे निकालोगे ऋषिका? Sir, it would be as mg upon cos theta. कैसे आया ये कहाँ से आया तुम्हें?
Sir, for like it is a vertical equilibrium, na, so it would be T cos theta is equal to mg. Okay. Yani tension is always directed from the stone to the point of suspension to your T dash. So tum bol rahe ho, we have to resolve T and mg is acting downwards. So what are you trying to say? Do we resolve tension or do we resolve mg in conical pendulum? Sir, mg. No, No, sir, tension. Sorry, sir, tension. See? Sorry, sir. ले लिया वापस, है ना? तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा तो हमेशा टेंशन आएगा। स्टूडेंट्स क्यों भूल रहे हो? ये भूल गए तो एमसीक्यूज गलत जाएंगे। स्टूडेंट्स हमेशा गार्ड बांध लो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा जहाँ पे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आया तो एमजी को रिजॉल्व करना है, और जहाँ पे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी प्ले रोल नहीं करता है हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए, तो टेंशन को रिजॉल्व करना है। तो ये तो हमारे दो फोर्सेस हैं, तो हम टेंशन को रिजॉल्व करेंगे तो एक ऊपर जाएगा और एक इस तरफ जाएगा। ये तो तुम्हारा हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स कंपोनेंट ऑफ दिस, और ये तुम्हारा थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये थीटा हो गया, तो ये होगा तुम्हारा टी डैश कॉस थीटा और ये होगा टी डैश sin थीटा। सो component of tension that is t dash sin theta will be the cause for the stone to perform circular motion. वो सेंट्रीपिटल फोर्स वो इक्वेट करोगे, ऐड नहीं होगा, इक्वेट होगा वो, और यहाँ पे ये इक्वेट हो रहा है, वर्टिकल फोर्सेस आर गेटिंग इन इक्विलिब्रियम, तब जाके बॉडी उस सिस्टम में इक्विलिब्रियम रहेगा। तो नाउ टेंशन के लिए क्या करोगे तुम? t dash cos theta, what exactly she said it is equal to what? mg. Agreed. So t dash what is cos theta? Cos theta will be equal to adjacent upon hypotenuse, which is equal to mg. Is h known to you, students? Is h known to you? How much is it? 120 centimeters. Is L known to you? How much is L? 130. You will not convert. तुम convert नहीं करोगे। So what exactly T dash will be equal to? T dash will be mass कितना दिया है? 200 grams को करो, फिर kilograms 1000, G को 10 ले लो, ये L ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा, तो L ऊपर चला गया तो 130 ऊपर चला जाएगा। Are you getting it? और तुम्हारा H नीचे आ जाएगा, H कितना है? 120. Solve it. That many Newton. Agreed. Is it clear? What is the Yes, sir. Yes, sir. आंसर क्या मिल रहा है तुम्हें? Sir, 216. Sir, 2.1 approx. 2.1. Rudy, are you getting 2.1? Sir, decimal डालना grade से आपको मैंने wrong बोल दिया। 216. क्या बोल रहे हो? Decimal डालना भूल गई। अच्छा, डेसिबल डालना बोले, खा गई, भूख लगी है, मम्मा नाश्ता बना रही है, डोंट वरी, ब्रेड के साथ में सर, चीज। खा लिया मैं। अच्छा, लेक्चर के साथ में खाते हो तुम लोग? हाँ वाह सर, लेफ्ट हैंड से खाते, राइट हैंड से लिख लेगा। क्या बात है, तुम्हारे नसीब सही है यार, क्या बात है, वेरी गुड। तुम लोग सब कुछ करते हो और हमें कंसिस्टेंटली सामने की तरफ बस। वाह रे वाह, हमारा तो लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड भी सारे ऑक्यूपाइड रहते हैं। सर क्या नहीं, सर, आपका ऐसा वीडियो नहीं कॉल होता। कर। हम लोग कहाँ से, हम लोग खाएंगे तो हम लोग चुप बैठेंगे करके। हाँ, वो बात है कि कभी कभार चाय और कुछ देते हैं हम लोग। सर क्या हेमंत सर बात है, खा लेते। तुम्हारी तो हाँ लाइफ सर, बनी है। जी लो अपनी जिंदगी, जी लो अपनी जिंदगी। सर हेमंत सर तो खाते ऑनलाइन। खाते पढ़ाते हैं। हाँ, हेमंत सर खाते खाते पढ़ाते हैं। अच्छा ना, हेमंत सर इज ग्रोइंग किड इन दैट केस, उनको तो चाहिए, नीड जनरली इन दैट केस, लेकिन इट्स फाइन, वो होता है ना। नहीं। किसी वन थिंग, किसी किसी का अभी आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, सम एक सुबह के टाइम पे यू नीड सम फूड इन दैट केस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट and it's nothing wrong into it, students. I don't think anything is wrong. तुम लोग खाओ, doesn't matter. It's nothing wrong into it. The teacher also has it. Unless and until तुम्हारा time waste नहीं हो रहा, तुम्हारे studies में तुम्हारा दूसरी फालतू बातें नहीं आती है, other than studies or somewhere motivation talks are going on or somewhere studies related, not somewhere other than out of studies or some different topic के ऊपर ही तुम चलेगे, that is wrong.
That is waste of time. I getting it? That should not happen. It doesn't matter if in case if we have it along with these things. उससे और एनर्जी मिलेगी. क्या बात है. लेकिन ये see the I'm happy that Ruti she spoke the truth. Can I erase it? Erase कर दो students. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन लाइफ बन गया तुम सर लोग. हम लोग तो बिना नहाए ऐसे बैठ जाते हैं. क्या बात है. Oh my God! Next time, students, nobody is going to sit Right, next to sir. PO. Nobody is not going to sit next to PO when she comes for lectures. सर ऑफलाइन में तो नहाना पड़ता ही है और अच्छा, हाँ, बात sir. करनी है। बस समझो ऑफलाइन की बात कर रही है वो. नहीं नहीं ऑफलाइन में तो सब नहाते हैं। No, Okay. sir. Okay, fine. Second one, students, get me the answer for the second one. On the last question, fast. Can anybody give me the answer for this? ये तो एक theoretical question है, students. चलो ये feel करो, students. चलो try to feel it कि तुम चला रहे हो गाड़ी. The driver of a car, और देखो ये IIT 1977 में पूछा था, students. The driver of a car traveling a speed suddenly sees a wall at a distance r directly in front of him. A driver of a car traveling at a speed suddenly sees a wall at a distance r directly in front of him. To avoid collision, should he apply brakes or turn the car sharply away from the wall? He should apply brakes. ना पीछे आंसर देख लिया है ना. पूछा ना No, reason. sir. पीछे देखती भी नहीं हूँ मैं तो. नहीं. अरे because if he will turn sharply turn so that that force will act centripetal one minute. हाँ, देखा. हाँ sir. गाड़ी पीछे का साइड गाड़ी का ठुक जाता है। हाँ sir. यस. चलो डायग्राम के साथ में 3D डायग्राम बनाया ना, वॉल बना दिया, गाड़ी दिखा दी. अच्छा गाड़ी ऐसे नहीं जा रही है, गाड़ी ऐसे जा रही है. चलो स्टीयरिंग व्हील ऐसे दिखा देता हूं, बस पुश मर्सिडीज बेंज. हाँ चलो बताओ अभी. अगर तुमने हाँ बोलो. सर क्योंकि अगर हम शार्प टर्न देते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट करता है गाड़ी के और पीछे का Very साइड जो है गाड़ी का वो ठुक जाता है अगर एब्सोल्युटली टाइम करेक्ट. पे ओके स्टूडेंट्स, अगर तुमने शार्प टर्न लिया, अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, जब मैंने सिखाया था स्टूडेंट्स, स्पीड ब्रेकर्स तुम्हें रोड पे कहाँ पे मिलेंगे? हाँ स्टूडेंट्स, In every turn. एवरी टर्न, यानी जहाँ पे तुम्हें रोड्स वाइड है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना. स्पीड ब्रेकर ऐसे नहीं कि चलो मेरे घर के यहाँ पे टर्न आ रहा है तो स्पीड ब्रेकर साथ तो बोल रहे कि एवरी टर्न, पीयू बोल रही है एवरी टर्न. ये तो गलत है. वो वाले मतलब टर्न्स की सर बात जब भी कहीं क्रॉस करेंगे टर्न लेंगे किसी रोड में. नहीं क्रॉस नहीं, जहाँ पे तुम्हारा ट्रैफिक इज मोर ऑफन, roads are slightly wider. I'm not saying it. Roads where it is wide enough, यानी space ज्यादा है. Space जहाँ पे ज्यादा है, wide है, traffic है, and running motion of the cars is a lot. And और वहाँ पे turns आते हैं, वहाँ पे हमेशा तुम्हें turn के पहले speed breaker मिलेगा. अगर by chance तुमने speed breaker नहीं किया, and if you try to make a car to go on a circular path, और उस टाइम पे तुम्हारा डायरेक्शन चेंज होगा, which in turn leads to change in speed. The motion will be accelerated in that case. यानी तुम्हारा velocity बढ़ेगा उस टाइम पे. तो अगर सपोज तुमने शार्प टर्न ले लिया, तो शार्प टर्न लेने के टाइम पे क्या होगा? Your car might hit the wall in that case because there will be a centrifugal force acting. यानी एक tangential force और एक centrifugal force, दोनों का resultant इस तरफ जा रहा है. तो ये रिजल्टेंट की वजह से your car might hit the wall, and what she said, it will be the back portion of the car will have a greater impact. Absolutely correct. Possibility है. अगर तुमने सडन ब्रेक्स डाल दिया तो उसका मतलब your car might skid. It's only that skid will take place. Possibility that you might run closer to the wall, but you might halt yourself. You will not hit the wall. Is that clear, Yes, student? sir. यानी समझ में आ रहा है? Now when you learn car, getting it, try to look into it. कभी ऐसे जाते हो तो ध्यान रखना, एक्सीडेंट होने के टाइम पे
Students, one thing you can know it, ये चीज ध्यान में रखना students. अगर severe accidents के time पे if your brain stops working, you are dead. ये fact है. अगर suppose God forbid, मैं अपनी बात करता हूँ, suppose अगर मैं drive करता हूँ और all of a sudden मुझे सामने बड़ा सा टैंकर दिखाई दे रहा है और मैं 100 km/h की स्पीड से हूँ, and me and tanker के बीच में distance short है, and I know that I'm going to bang onto the tanker, पीछे का portion. लेकिन उस time पे if you get scared and if your brain stops working, you are dead already. You will not survive. Your survival rate decreases. So students, accidents के time पे when you start thinking more and more how to save yourself, you will survive. तुम्हारा survival rate बढ़ जाता है. So अगर शायद किसी को एक्सीडेंट हुआ है तो अगर तुम ध्यान करो एक्सीडेंट के टाइम पे तुम्हें वो सीक्वेंस भी नहीं याद होगा कि क्या हुआ था उस टाइम. You'll forget because that moment your brain stops working. So do keep in mind, students, makes your brain to work all the time and make your brain to work more effectively on physics. Okay, chalo, bye, see you all.